الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوہا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت جو ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کے تحت ترجمہ اور معانی اور ترجمہ کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور کون کون سی چیزیں اس کے تحت بیان کی جا سکتی ہیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوا، اور نہ مباشرت کرو، نہ مجامعت کرو، ہننا تانیث کا صیغہ ہے، یعنی مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد یہاں بیویاں ہیں، اور نہ اشارتاً بیویاں اس کا معنی ہے، اور نہ مباشرت کرو، نہ مجامعت کرو اپنی بیویوں سے۔ وا کے معنی اور تم عاکفون، عاکف بنو یعنی معتکف بنو، اعتکاف میں ہو اگر، فی المساجد مسجدوں میں، اگر تم مسجدوں میں بطور عاکف ہو تو تم اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدیں مقرر کی گئی ہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، اور نہ ہی ان کے قریب جاؤ۔ معزز سامعین ناظرین حضرات، تو یہاں اعتکاف کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال نے بتایا کہ جب تم اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں کے قریب مت جاؤ۔ تو ہم اعتکاف کے مسائل کے بارے میں اس لیکچر میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اعتکاف کا لفظی اور لغوی معنی ٹھہرنے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی اعتکاف کا مباشرت یعنی مجامعت کو ترک کرتے ہوئے اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے مسجد میں روزے سے قیام کرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر سماعت کر لیں کہ مجامعت اور مباشرت کو ترک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تقرب کے حصول کی نیت کے ساتھ روزہ رکھ کر مسجد میں قیام کرنا اعتکاف کا اصطلاحی معنی ہے۔ اعتکاف کی شرائط کو جاننے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اعتکاف کی اقسام کتنی ہیں۔ جس طرح روزے کی اقسام بیان کی گئی تھی، اعتکاف کی بھی یاد رکھیں 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم واجب اعتکاف کی ہے۔ یہ وہ اعتکاف ہوتا ہے جو ہم اعتکاف بیٹھنے کے لیے کوئی منت یا نظر مان لیتے ہیں، اس صورت میں جو اعتکاف ہم پر لازم ہو جاتا ہے اسے واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا اعتکاف جسے سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، رمضان شریف کے مہینے کے آخری عشرہ میں اعتکاف جو بیٹھا جائے اسے سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف بیٹھے تھے۔ ثابت یہ ہوا دوسرے اور تیسرے عشرے میں آپ سال کے آخری سال میں آپ نے اعتکاف فرمایا تھا، لیکن ہمارے لیے چھوٹ ہے کہ ہم اعتکاف آخری عشرے میں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ
एतकाफ बैठना सुन्नत मुअक्कदा है और ये रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे यानी आखिरी 10 दिनों में बैठा जाता है। तीसरा एतकाफ एतकाफ नफली है, इसकी कोई हद नहीं होती, वक्त की तहदीद इसके लिए नहीं है और रोजे की भी शर्त नहीं है। ये तीसरे एतकाफ के लिए मसलन हम 2 दिन के लिए एतकाफ की नियत कर सकते हैं, नफली एतकाफ की बात कर रहा हूं। हम 4 दिन के लिए कर सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए कर सकते हैं, हम यहां तक भी कर सकते हैं कि अगर हम मस्जिद में एतकाफ की नीयत से सिर्फ नमाज पढ़ने की खातिर जाते हैं और एतकाफ की नीयत कर लेते हैं कि हम जो है एतकाफ जब तक मस्जिद में रहेंगे एतकाफ की नीयत से रहेंगे और जब नमाज ख़त्म हो जाएगी तो हम बाहर निकल आएंगे तो हमारा एतकाफ भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये नफली एतकाफ है। नफली एतकाफ के लिए वक्त की तहदीद यानी हद कोई नहीं है और ना ही इसकी कोई रोज़ा इसकी शर्त है। बगैर रोज़े के भी नफली एतकाफ बैठा जा सकता है। एतकाफ की शराइत कौन कौन सी हैं, किन शराइत को मद्देनजर रखें हम तो एतकाफ होगा। तो पहले सबसे पहली काम तो एतकाफ की नीयत करना है कि नीयत ज़रूरी है। नीयत के बगैर एतकाफ मुकम्मल नहीं होगा। वो ऊंची आवाज़ में कहें, वो दिल से कर लें, खामोशी से कर लें, जिस तरह जी चाहे कर लें, नीयत करने से एतकाफ की पहली शर्त है नीयत करना। दूसरी बात यह है कि जिस मस्जिद में अज़ान होती हो, इमामत होती हो, जमात कराई जाए यानी उस समय एतकाफ बैठना ज़रूरी है। लेकिन अहम बात यह है कि अगर करीब तरीन कोई जामे मस्जिद मौजूद है तो जामे मस्जिद में एतकाफ बैठना अक्सर आइमा कराम इस बात को तरजीह देते हैं कि जामे मस्जिद में एतकाफ बैठा जाए ताकि जुमे की गरज से मस्जिद से बाहर ना जाया जाए। अगर जामा मस्जिद करीब तरीन नहीं है और घर से खाने पीने की कोई चीज़ें रोज़े की अफ्तारी के लिए मुहैया करना दुश्वार है तो उस सूरत में आप अपनी करीबी मस्जिद जहां अजान होती है, इमामत भी होती है, जमात वगैरह कराई जाती है, वहां आप एतकाफ बैठ सकते हैं। ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त यह है कि मोतकिफ का यानी एतकाफ बैठने वाले का, आकिफ का ये शर्त है कि वो मुसलमान हो और आकिल हो, अक्लमंद हो, शऊर रखता हो, मजनू ना हो, पागल ना हो, दीवाना ना हो, हत्ता कि मरीज ना हो कि मरीज मर्ज की वजह से बेहोशी तारी हो जाए, ऐसा ना हो, इंतहाई होशो हवास में हो, मुसलमान हो, आकिल हो। और इसके लिए बालिग होना कोई शर्त नहीं है। मोतकिफ के लिए बालिग ना भी हो तो एतकाफ बैठ सकता है और इसी तरीके से आज़ाद नहीं, गुलाम है, वो भी एतकाफ बैठ सकता है। मस्जिद में ये ख्याल रखना है इस बात का कि मस्जिद में सिर्फ मर्द हजरात जो है ये मस्जिद में बतौर मोतकिफ बैठ सकते हैं। औरतें अपने घरों में एतकाफ कर सकते हैं। वो घर का कोई एक कमरे का एक कोना मखसूस कर लें, वहाँ अपना मुसल्ला वगैरह बिछा कर वहाँ एतकाफ जो है वो बैठ सकती हैं। अलबत्ता ये है कि वहाँ बच्चों का आना जाना या घर वालों का इस तरीके से नहीं है कि उनसे बातचीत भी होती रहे, सिवाय वॉशरूम के इस्तेमाल करने के या वुजू करने के लिए के अलावा औरत बाहर ना आए। दुनियावी उलूम के सिलसिले में भी वो किसी से बात नहीं कर सकती। वो अपने घर के एक कमरे के एक कोने में एतकाफ घर में बैठ सकती हैं। अगर एतकाफ आपका वाजिब है या एतकाफ आपका सुन्नत है, इसमें रोज़ा शर्त है। अगर नफली एतकाफ है आपका तो उसमें रोज़ा शर्त नहीं है। वाजिब एतकाफ के बारे में मैं आपको पहले बता चुका, जो नज़र मानी मन्नत मानी वो एतकाफ वाजिब होगा। और जो पाक इस रमज़ान शरीफ के महीने के हवाले से जो हम बैठते हैं सुन्नत मुअक्कदा के हवाले से, ये सुन्नत एतकाफ होगा। इन दोनों के लिए रोज़ा शर्त है। और अगर नफली एतकाफ है उस सूरत में
روزہ رکھ لیں آپ کی مرضی یا نہ رکھیں آپ کی مرضی ہے، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، اور نہ ہی اس نفلی اعتکاف کے لیے آپ کو بتایا ہے کہ حد بندی بھی نہیں ہے وقت کا۔ ایک نماز سے کے لیے آپ داخل ہوئے ہیں تو اعتکاف کی نیت سے داخل ہو سکتے ہیں، اور جو ہی آپ باہر نکلیں گے اعتکاف خود بخود ختم ہو جائے گا۔ پھر اعتکاف کے چند ایک آداب ہیں، آپ اعتکاف بیٹھ گئے۔ اعتکاف میں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی اعتکاف تو مسجد میں داخل ہو گئے، بیٹھ بھی گئے، کرنا کیا چاہیے، مسجد میں کیا کیا جاتا ہے؟ تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ مسجد میں ایک تو پنجگانہ نماز آپ کی باجماعت ادا ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ جماعت کھڑی ہے اور آپ سوئے ہوئے ہیں۔ بذات خود معتکف کا سونا بذات خود کوئی گناہ کا سبب نہیں ہوتا، اس کا مسجد کے اندر سونا بھی ثواب ہے اگر وہ معتکف ہے، لیکن نماز کے ٹائم سونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کم از کم پنجگانہ نماز وہ باجماعت ادا کرے، قرآن و حدیث کی جتنا وقت ملے قرآن و حدیث کی تلاوت کرتا رہے جو اس کے پاس دستیاب ہیں، اور اگر فقہ کی کوئی کتاب موجود ہے تو وہ فقہ کی کتاب سے دینی مسائل کو جاننے کی کوشش کریں۔ اگر ان کے پاس کوئی سیرت کی کتابیں ہیں، انبیاء کرام کے حوالوں سے سیرت کی کتابیں موجود ہیں، انبیاء کرام کی زندگی کے بارے میں، یا اولیاء کرام کی زندگی کے سیرت کی کتابیں موجود ہیں، یا اولیاء کرام کے جو صالحین کی حکایات ہیں ان کو پڑھتا رہے، اوراد اور وظائف کرتا رہے، یا نوافل کا ٹائم ہے تو نوافل ادا کرتا رہے، اسی طریقے سے تہجد کے وقت تہجد ادا کرے اور اشراق کے وقت اشراق پڑھے، اسی طریقے سے وہ اوابین کے نوافل ادا کر سکتا ہے مغرب کے بعد، اور بھی نوافل ساری رات جب جی چاہے نوافل ادا کر سکتا ہے، ان کے علاوہ اوراد کے علاوہ چلتے پھرتے یا بیٹھ کر اللہ رب ذوالجلال کی تسبیح اور تحلیل بیان کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی قسم کے کوئی دنیاوی مسائل یا امور ہوں تو اس میں وہ اپنے آپ کو مصروف نہ رکھے، دور رہے۔ آج کل ایک عجیب مرض آیا ہوا ہے اور یہ پھیل چکا ہے، 10 دن کی نیت کر کے سنت کے مطابق ہم اعتکاف تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن موبائل فون کا استعمال ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے مسجد سے باہر رہتے ہوئے کرتے ہیں، تو اس سے اعتکاف بیٹھنے کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ موبائل فون کا استعمال کرنا، حتیٰ کہ ضروری کال کے سلسلے میں بھی موبائل فون کا استعمال کرنے سے باطل ہونے کا امکان ہے کہ اعتکاف بالکل عین فاسد اور مفسد ہو جاتا ہے، اس سے کا اعتکاف بیٹھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو کیونکہ اعتکاف کا لفظی معنی ہی جس طرح میں پہلے بتا چکا کہ تقرب حاصل کرنا ہے، مسجد میں ہم کیوں ٹھہرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ٹھہرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بجائے ہم دن رات فون پر لگے رہیں اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو مصروف رکھیں جس طرح مسجد سے باہر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، تو ایسے اعتکاف سے صرف دن گزرتے ہیں، کسی قسم کے کوئی روحانی فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ اعتکاف سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف ختم ہو جاتا ہے؟ ان کو ہم مفسدات بھی کہتے ہیں، ایسی چیزیں جن سے اعتکاف بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی اس میں سے شرط یہ ہے کہ آپ کا کوئی عذر شرعی موجود نہیں ہے، شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی، کوئی عذر ایسا موجود نہیں کہ جس کے تحت آپ مسجد سے باہر چلے جائیں، اور بلا عذر شرعی آپ مسجد سے باہر چلے گئے تو بلا عذر شرعی کیا ہے کہ چلیں میں تفصیلاً آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں ہم مسجد میں داخل ہو کر اپنے جوتے اتارتے ہیں یہ مسجد سے باہر کا حصہ ہے، جہاں وضو خانہ موجود ہے یہ بھی مسجد کے باہر کا حصہ ہے، اور جہاں واش روم موجود ہیں یہ بھی مسجد کے باہر کا حصہ ہے۔ اب اگر ہم نے
रफ़ाए हाजत के लिए जाना है तो ये एक शरई मजबूरी है, हम जा सकते हैं। हमने नमाज के लिए वज़ू की तजदीद करनी है या ताज़ा वज़ू करना है तो उस सूरत में हम वज़ू खाने तक जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और शरई मजबूरी है वो आगे मज़ीद बयान की जाएगी, वो नहीं है और आप बाहर चले गए तो आपका एतकाफ जो है वो फासिद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उस सूरत में आप घर जाएं आपकी मर्जी है, बैठे रहें आपकी मर्जी है, उस सूरत में आपका एतकाफ नहीं रहेगा। वज़ू के लिए आप वज़ू खाने तक जा सकते हैं, वाशरूम तक रफ़ाए हाजत के लिए जा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता आप जिस मस्जिद में एतकाफ बैठे हैं और उसके करीब मस्जिद में जुमा होता है तो आप जुमे के लिए करीबी मस्जिद में जुमे के वक्त जा सकते हैं। जुमा पढ़ने के फौरन बाद वापस लौटें खामोशी से। रास्ते में किसी से कलाम मत करें, खामोशी से आकर मस्जिद में बैठ सकते हैं। तो ये जुमा पढ़ने के लिए बाहर जाना या रिफाए हाजत के लिए जाना या वज़ू के लिए जाना ये जायज़ और दुरुस्त है, इसकी इजाज़त है। खाने पीने के लिए अफ्तारी करनी है या सहरी करनी है या सोना है, इसके लिए मस्जिद से बाहर जाना ये जायज़ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात ये है कि आप मस्जिद में बैठे हैं, मस्जिद की छत जो है इंतहाई कमज़ोर है, मस्जिद के गिरने का इम्कान है, बारिश आ गया या तूफ़ान आ गया तो आप उस सूरत में मस्जिद से बाहर आ जाएं। या बाज़ दफ़ा ये है मस्जिद में बैठे हैं, ज़लज़ला आ गया और खतरा है जान को, तो उस सूरत में जब तक ज़लज़ला थम नहीं जाता उस वक्त तक आप मस्जिद से बाहर निकल आएं। जहां तक अपने आप को महफूज समझते हैं बाहर निकल आएं। जान और माल को बचाने के लिए आप मस्जिद से बाहर आ सकते हैं, ये जायज़ है। मरीज की इयादत करने के लिए बेशक वो आपके बहन हैं, भाई हैं, बेटे हैं, औलाद हैं, बीवी है, माँ बाप हैं, जितने भी हैं, मरीज की इयादत करने के लिए या नमाज जनाजा किसी दोस्त अहबाब का, रिश्तेदार का, करीबी का है, इसके लिए या सिर्फ गुस्ल करने के लिए, नहाने के नियत से बाहर जाना, इससे ये नाजायज़ है, इससे ये जो है एतकाफ ख़त्म हो जाएगा। बाद लोग हर दूसरे तीसरे दिन या रोज़ाना नहाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ बाहर आना जाना लगा रहता है। तो गुस्ल करना कोशिश करें कि जब 10 दिन के लिए आप बैठें आप सिर्फ वज़ू की हद तक रहें। गर्मी हो या सर्दी हो, कुछ भी हो, आप गुस्ल ना करें, क्योंकि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल को आपकी पाकीज़गी दरकार है। गुस्ल करने से जो पाकीज़गी हासिल होती है वो ज़ाहिरी है। अल्लाह ताला आपकी नीयतों को जानने वाले हैं। इस तरीके से आप नहा धोकर आप दिन रात एक करके आप अपने आप को इस काम में मसरूफ़ ना रखें, बल्कि उतने टाइम के लिए अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की तस्बीह और तहलील बयान करें। इसी तरीके से मस्जिद में या मस्जिद के करीबी हुजरे में कहीं भी जाके जमा करना, मुबाशरत करना बीवी के साथ, या बोसो किनार करना या उनका मुआनका करना, ये सारे मुफसदात में शामिल हैं और ये एतकाफ के दौरान ये नाजायज़ हैं। किसी भी किस्म का मदहोशी हो गई एतकाफ के दौरान, या पागलपन छा गया किसी वजह से, या ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि होशो हवास में नहीं है, उस सूरत में एतकाफ फस्ख हो जाएगा। इसके लिए एतकाफ दुरुस्त नहीं रहेगा, एतकाफ खत्म हो जाएगा। एतकाफ के बारे में चंद दीगर मसाइल जो दोस्त अब आप पूछे रहते हैं वो भी बयान करता चलूं कि बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि एतकाफ में जब बैठा होता है तो बिल्कुल ऐन खामोश होकर बैठा रहता है और उसको बताया जाता है कि एतकाफ के दौरान ना बोलना भी इबादत है। ऐसा दीन में कोई मसला मौजूद नहीं है कि ना बोलना जो है वो खालिस्तान इबादत है। हाँ, अलबत्ता अपनी जबान को बुरी बातों से और दुनियावी अमूर से रोके रखना ये इबादत जरूर है। ना बोलना ये इबादत नहीं है। आपके आपसे कोई दीनी मसाइल पूछने के लिए आता है, कुरान पाक की आयत के हवाले से आता है, कोई आपके साथ पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के बारे में आप कोई मसाइल बता रहे हैं, या पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अंबिया कराम की हयात तैयबा के बारे में बता रहे हैं, या औराद व वज़ाइफ के सवाब की नीयत से आप उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये ना सिर्फ जायज़ है बल्कि
एतकाफ के दौरान ऐसा करना कार सवाब है। एतकाफ में अगर आमदन आपने जानबूझकर या भूल कर जमा कर लिया, या जानबूझकर या भूल कर आप बगैर शरई उज़्र के मस्जिद से बाहर निकल गए तो एतकाफ फासिद हो जाता है। एतकाफ के लिए जानबूझ के बाहर निकलना या भूल कर बाहर निकल गए, जमा कर लिया मुबाशरत की, तो उस सूरत में एतकाफ खत्म हो जाएगा। और बगैर शरई उज़्र के आप मस्जिद से बाहर निकल गए, उस सूरत में भी एतकाफ खत्म हो जाता है। और एतकाफ के दौरान बैठे थे, भूल कर खा पी लिया, तो उस सूरत में एतकाफ का वही मसला है, वही अहकामात हैं जो रोज़े के हैं। अगर भूल कर खा पी लेंगे तो रोज़ा फस्ट नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। इसी तरीके से भूल कर खा पी लेने से एतकाफ भी ख़त्म नहीं होता। लेकिन अगर जानबूझ कर खा पी लिया तो उस सूरत में एतकाफ ख़त्म हो जाएगा। एतकाफ के दौरान आप सुन्नत मोहम्मदी के मुताबिक खुशबू लगाते हैं, या सुरमा लगा लेते हैं, या सर पर तेल लगा लेते हैं, या अरीश मुबारक पर आप जो है अपने तेल लगाते हैं, उस सूरत में एतकाफ ख़त्म नहीं होता। ये जायज़ और दुरुस्त है। अगर आप एतकाफ जो है वाजिब बैठे हैं और वाजिब की सूरत में किसी गैर शरई उज़्र के तहत किसी वजह से एतकाफ आपका फासिद हो गया, तो उसका रखना भी याद रखें वाजिब है। एतकाफ का बैठना भी वाजिब है। एक दफ़ा फिर समाअत कर लेंगे। अगर आप वाजिब एतकाफ बैठे थे और किसी भी वजह से वो एतकाफ आपका ख़त्म हो गया, तो उस सूरत में एतकाफ का कज़ा अदा करना भी आप पर वाजिब है। आप एतकाफ में बैठेंगे। और ये जो मसला अब बताया जा रहा है, ये असर हाज़िर के मुताबिक अब जदीद तरीन है। एडवांस कंट्री जितने भी हैं, गैर मुस्लिम ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिस तरह अमेरिका, कनाडा जो है, बरतानिया, फ्रांस वगैरह, ये मुसलमान हजरात वहाँ जाते हैं और वहाँ इनके लिए चूँकि इबादत गाहें बनाना कदरे मुश्किल होता है, तो उस सूरत में ये ज़मीनें लीज़ पर ले लेते हैं। और ज़मीनें लीज़ पर लेकर 100 साल के लिए, 50 साल के लिए लीज़ पर ले लेते हैं, और लीज़ पर लेकर इसका मस्जिद तामीर कर लेते हैं। और उस मस्जिद में नमाज जमात की हैसियत से अगर वो पढ़ते हैं तो जमात का या मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब नहीं होगा, और ऐसी मस्जिद में एतकाफ बैठना भी ठीक नहीं होगा। एक दफ़ा फिर समाअत कर लें कि ऐसी जगह मस्जिद तामीर की जो हुकूमत की ज़मीन मौजूद है, किसी किस्म का कोई इजाज़तनामा आपने उससे हासिल, हुकूमत से हासिल नहीं किया, आपके पास कोई सर्टिफिकेट या इंतकाल का कोई सबूत वगैरह मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में आपने किसी के कहने पर वहाँ मस्जिद तामीर कर ली, या लीज पर लेकर आपने पटे पर लेकर, ठेके पर लेकर, आसान लफ्ज़ों में बयान किया जाए, ठेके पर लेकर आपने ज़मीन पर मस्जिद तामीर कर ली। 100 साल की लीज थी, 50 साल की लीज थी, 30 साल की लीज थी, तो उस सूरत में आपने मस्जिद बना ली, और उस मस्जिद में आप खुद नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं या बाजमात नमाज अदा होती है, तो याद रखें मस्जिद में, ऐसी मस्जिद में जमात का सवाब या मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब नहीं होगा, और ऐसी ही मस्जिद में एतकाफ बैठना भी दुरुस्त नहीं होगा। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन हज़रात, कोशिश की गई है कि एतकाफ के तमाम चीज़ें बयान कर दी जाएँ। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई मसला आपको दीन के इस हवाले से, रोज़ों के हवाले से, एतकाफ के हवाले से कोई मसला दरपेश हो, तो आप मेरे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और जो आप इसके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके और आपकी औलाद के ये मसाइल वगैरह काम आते रहें। इसमें दीन का भी फ़ायदा है, दुनिया का भी फ़ायदा है, तमाम लिहाज से फ़ायदा है। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।